Praise the Lord. Are you able to hear me? Yes, Pastor, we Yes, are sir. able to hear you. It's a great privilege to be able to gather like this. और ये बहुत ही खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार से आप लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। And we are definitely privileged and found the grace of God, particularly in entering into another year, 2021. और परमेश्वर का ये विशेष अनुग्रह हमारे जीवन में है, सौभाग्य है कि हम एक और वर्ष 2021 में प्रवेश करने पाए हैं। It's definitely true that we were not in any way great or holier or very special than those who died in 2020. इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग 2020 में प्रभु में सो गए या मृत्यु उनको प्राप्त हुई, हम उन लोगों से बेहतर हैं या गुणवान हैं। I know that many people died in 2020 because of corona, because of COVID deaths. और मैं जानता हूं कि वर्ष 2020 में बहुत से लोग कोरोना का शिकार हुए और मृत्यु में सो गए। And some of you who are here in the Bible study might have lost your own people, your own family members or your friends or anyone whom you know, your pastors or missionaries. And even some of the medical people also died, medical professionals, doctors, nurses, they also died. और ये भी हो सकता है कि आपने भी अपने प्रियों को खोया हो, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से नर्स, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार हो सकता है इस बीमारी के शिकार हुए हों और आपने उन्हें खो दिया हो। So definitely those of us who are here on this, we must be grateful to God. Thank God. इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवादित होना है कि वर्ष 2021 के 5वें दिन में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। And let me also take this privilege and opportunity of wishing you all a very happy new year. और मैं ये समय लेकर एक बार फिर से आप सभी को संबोधित करना चाहता हूं, आपका अभिवादन करना चाहता हूं और आपको वर्ष 2021 की बधाई देना चाहता हूं। We wish you the same, Pastor. Oh, thank you, Saurav. Thank you very much. Right. Then another thing, we need to thank God for our dear brother Vijay Chandra. और फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हमारे प्रिय भाई विजय चंद्र जी के लिए। He is the one who has planned this particular program, the way that we are all gathering like this today and today onwards. और भाई विजय के द्वारा ही इस कार्यक्रम की और विशेषकर इस बाइबल अध्ययन की योजना बनाई गई है जो कि आज से लेकर आने वाले समय में आगे चलने वाली है। For quite few months, in fact, not even more than a year, below one year only, I got to know him somehow through online like this. And ever since I have been talking to him, I found that he truly loves the Lord and he has a lot of burden, particularly for the northern part of our country, North India. और एक साल से कम समय हुआ है अभी जब मेरी उनके साथ में बातचीत हुई, ऑनलाइन मुलाकात हुई और उनसे बातचीत करके मुझे ये एहसास हुआ और कि उन्हें परमेश्वर से बहुत प्रेम है और विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों के लिए उनके अंदर में एक बोझ है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And one interesting thing about Vijay is he is not in South India or North India. He is away from India, he is somewhere in Kuwait. और भाई विजय की एक विशेष बात है कि वो ना दक्षिण भारत में है ना उत्तर भारत में है, वो भारत में ही नहीं है, वो कुवैत में या किसी विदेशी देश में है। Yeah, that's really nice, no? Somebody who is away from India is thinking of what is happening in India. और ये बहुत ही खुशी की बात है और अच्छी बात है कि जो भारत में नहीं है, विदेश में है, लेकिन फिर भी अपने देश के विषय में, अपने देश के लिए बोझ को रखते हैं। Yeah, we need to thank God for people like that. और इसीलिए हमें इस प्रकार के परमेश्वर के जनों के लिए धन्यवादित होना है। And we thank God because there are many such people, not only Vijay, and there are many such people. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भाई विजय के जैसे और भी बहुत से लोग सेवा के लिए समर्पित हैं। And I want to wish you all, I appreciate all of you, most of you who are in this Bible study right now. I know that you are all there somewhere in particularly North India, most of them, 90%, except Joshua, Daniel, Sujata, and Joseph, except few of us, you're all there in the north. I am in Hyderabad. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने प्रतिभागी इस ऑनलाइन
ज़ूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप में से अधिकांश लोग उत्तर भारत से हैं। कुछ 2-3 लोग ही हम लोग अलग-अलग जगह से हैं। मैं हैदराबाद से हूँ, लेकिन बाकी सब लोग आप लोग नॉर्थ से हैं, उत्तर भारत से हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए। I want all of you to know one thing, that we have very high regard and respect for you people, those of you believers, missionaries, pastors who are serving the Lord in the North India. We have lot of appreciation and high regard. We salute you. और एक बात मैं आपको अपने दिल से बताना चाहता हूँ कि आप जैसे सेवक जो उत्तर भारत में सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हमारे अंदर में, हमारे मनों में बहुत सम्मान है, इज्जत है और हम परमेश्वर में आपकी सराहना करते हैं और हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी सेवा के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। And when we are saying these things, I'm also thinking of not only these years, these months, and those of us, the people like us, but my mind goes back to, years, some 200 years back, 300 years back, those missionaries who thought of the unreached places. और जब मैं आपसे इस प्रकार से बात कर रहा हूँ, तो मेरा मन 200-300 साल पीछे जाता है और मैं स्मरण करता हूँ कि किस प्रकार मिशनरियों ने अपने जीवन को, अपनी सेवा को उन स्थानों में लगाया था। For example, think of a person like William Carey, who came to India from London in 1792. और उदाहरण के तौर पे मैं विलियम केरी जी को स्मरण करता हूँ जो 1972 में इंग्लैंड से हमारे भारत देश में आए सेवा करने के लिए। Yeah, when William Carey stepped into India, India was a different country. There was no development, no education, no technological development. But William Carey came to India. He almost changed the shape of our country. जब विलियम केरी भारत देश में आए तो भारत देश इतना उन्नतशील या विकसित देश नहीं था। यहाँ पे तकनीकी विकास नहीं हुआ था। भारत की दशा उस समय बहुत खराब थी। लेकिन जब विलियम केरी जैसे लोग और विलियम केरी जब भारत में आए तो उन्होंने बड़े-बड़े बदलावों को अपने जीवन के द्वारा इस देश में लेकर आए। I think you all know that it was William Carey who got into the translation of the Bible. For that matter, the Telugu Bible and the Gujarati Bible and Marathi Bible and many languages. William Carey was responsible in translating the Bible into Indian languages. He took it upon himself, this responsibility. और आपको स्मरण होगा या आपको मालूम होगा कि विलियम केरी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल का अनुवाद अलग-अलग भारतीय भाषाओं में किया, जैसे तेलुगु भाषा में, गुजराती में, मराठी में और ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं जिसमें बाइबल का अनुवाद किया गया। तो इस चीज की जिम्मेदारी विलियम केरी जी ने लिया और उस चीज को, इस बाइबल अनुवाद के कार्य को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। Not only on the spiritual side, like this gospel ministry, he also contributed so much to our country. For example, he introduced a newspaper to our country. He introduced female girl child education. He also was involved in abolishing the Sati Sahagaman. He worked like that. और केवल आत्मिक बातों में ही उनका योगदान नहीं रहा, लेकिन वो समाज से भी जुड़े हुए थे और भारत के समाज के विकास के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। उदाहरण के तौर पे उन्होंने अखबार का प्रचलन चालू किया। उनके माध्यम से अखबार हमारे देश में बंटना चालू हुआ। उनके माध्यम से जो बेटी पढ़ाओ आंदोलन है वो शुरू हुआ। उसके साथ-साथ उन्होंने सती जैसी कुप्रथा को भी खत्म करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया। So now this modern India that we are living in, this modern development and lot of modern things, actually it all began, we can say, with William Carey. He started a lot of reformation, lot of changes, both in the church and in the society of our nation, India. तो आधुनिक भारत में जो आज हम उन्नत होते हुए चीजों को देख रहे हैं, आप याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है वो विलियम केरी जैसे लोगों ने किया। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, जिसके कारण से बड़े-बड़े बदलाव हमारे देश में, हमारे समाज में आए हैं और उन बदलावों को आज हम देख सकते हैं। Yeah, when you go a little further behind William Carey, some 500 years ago, Portugal people came to India when Vasco da Gama invented this routing. और कुछ 500 साल पहले, विलियम केरी से कुछ और वर्ष पहले, 500 साल पहले जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं
पुर्तगाल से भी मिशनरीज आए, वास्को डी गामा जैसे लोग आए और उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया हमारे देश में। Yeah. So now we went 200 years back and we went 500 years back. अब हमने 200 साल पहले की बात करी, उसके बाद 500 साल पहले क्या हुआ उसकी भी बात हमने करी। Then I want to take a long jump backwards, almost 2000 years back. और अब मैं एक लंबी छलांग लेना चाहता हूं और अब मैं आपका ध्यान 2000 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। Behind this Baptist missionary William Carey, behind this Portugal missionaries, there was some 2000 years ago, one missionary came to India, our land. और इसके पहले की बैप्टिस्ट मिशनरी हमारे देश में आए, पुर्तगाल से मिशनरी हमारे देश में आए, उससे भी पहले 2000 वर्ष पहले एक मिशनरी और हमारे देश में आए। I think you are able to understand about whom I am speaking. I am speaking about the Thomas, the disciple of the Lord Jesus Christ, who came to India in AD 52. और मैं समझता हूं कि आप लोग स्मरण कर रहे होंगे कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थोमा के विषय में, जो कि AD 52 में हमारे देश में प्रवेश किए। This is what the church history tells us. When you read the church history, these few movements I mentioned, like Baptist missionary William Carey, Portugal missionaries in 15th century, and go on when you go back, and AD 52, Thomas, the disciple of the Lord Jesus Christ, came to India. He was the one who brought the gospel of the Lord Jesus Christ into our nation. The history tells us. Yeah, go ahead. और जब हम कलीसिया के इतिहास की बात करते हैं तो इसी प्रकार के मिशनरी हमारे देश में आए। बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम केरी जी आए, उसके पहले 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल से मिशनरी हमारे देश में आए, और बाइबल हमें इस बात को बताता है और इतिहास इस बात को हमें स्पष्ट करता है कि 2000 वर्ष पहले AD 52 में हमारे देश में थोमा परमेश्वर के वचन को लेकर आए। Yeah, if you can read church history, you will understand that he served a great deal in Kerala, and he died in Madras, Chennai. His tomb is still there in Chennai. There is a road called St. Thomas Mount, St. Thomas Road. और जब आप कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि थोमा भारत देश में आए, वो केरल नाम के प्रदेश में उन्होंने कदम रखा, अपनी सेवा को किया, उसके बाद उनकी मृत्यु चेन्नई मद्रास में हुआ, और आज भी वहां पे उनकी कब्र पाई जाती है, और जिस स्थान पे उनका कब्र है वहां पे एक रोड है जो कि सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। But I also want to inform you, not only Thomas did ministry in the South India like Kerala and Madras and all, he also was there in Bombay. There was a mission that he did in Bombay. There we have some historical references that St. Thomas came to North India, that is Bombay. और इतिहास इस बात को भी प्रकट करता है कि संत थोमा ने केवल केरल, मद्रास या दक्षिण भारत में ही सेवा नहीं किया, लेकिन इतिहास इस बात को भी स्पष्ट करता है कि थोमा की सेवकाई बंबई या मुंबई जैसे शहर में भी रही, इसीलिए उत्तर भारत में भी संत थोमा ने आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। So when we are thinking about all this church history, this little story that 5-10 minutes I told you about the church history, when we think about all this, तो ये जो इतिहास के बारे में मैं बता रहा हूँ, कलीसिया के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में आपको बताने का कोशिश किया कि किस प्रकार से सेवकाइयां या परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे देश में आया। what we understand is how God is concerned about our nation, Bharat, India. That's what I want to tell you. तो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि परमेश्वर हमारे देश भारत में किस प्रकार रुचि रखता है। See, God has been sending his people from first century onwards, St. Thomas onwards, and down the line till today, 2021. God has been doing his great work, sending many people to India, and God has some special plan for our country. तो आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर पहली शताब्दी से लेकर अपने लोगों को, प्रचारकों को, सेवकों को हमारे देश में भेजता आया है ताकि सुसमाचार प्रचार का कार्य किया जाए, और पहली शताब्दी से लेकर आज तक परमेश्वर अपने लोगों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेज रहा है। तो इससे हमें यह समझना है कि परमेश्वर की हमारे देश के लिए एक अद्भुत योजना है। So let us really thank God for that. Let us worship him. Let us really praise our God for his great love for our great country. I am sure even in 2021, in the next few years,
God is going to greater things in our nation. इसीलिए हमें परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे देश से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसका कार्य हमारे देश में हो। इसीलिए आने वाले वर्षों में 2021 और उसके बाद में भी हम देखें कि किस प्रकार से प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त होता है और परमेश्वर के महान-महान कार्य हमारे देश में होने वाले हैं। So this is the kind of introduction that I would like to give to Book of Acts by relating, by connecting to God's mission from the Lord Jesus Christ till today. That is what is happening in our country. तो प्रेरितों के काम की पुस्तक का परिचय मैं इस प्रकार से देना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक हमारे देश में सुसमाचार प्रचार के कार्य को चलाता आया है, परमेश्वर की सेवकाई होते आई है। Yes. So now, when I was reading the Book of Acts and the introduction to the Book of Acts, and I read one paragraph, one question from one scholar. और जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक के परिचय को पढ़ रहा था और शुरुआती बातों को जब मैं ध्यान कर रहा था तो एक धर्म वैज्ञानिक ने एक सवाल को किया, उस सवाल के ऊपर मैं मनन कर रहा था। See, we have the books of the Bible, particularly in the New Testament, like this. Matthew is the first gospel, then we have Mark, then we have Luke, and then we have John's gospel. तो बाइबल की पुस्तकों को जब हम देखें तो नए नियम की विशेषकर जब पुस्तकों को हम देखते हैं तो शुरू में हमारे पास में 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार। So John is the last gospel, fourth gospel. और हम देखते हैं कि जो चौथा या अंतिम सुसमाचार है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार। Suppose let us imagine like this. After these 4 gospels, Matthew, Mark, Luke, John, and if there is no book of Acts in between, and straight after John's gospel, suppose if we go to Romans, which is the book after book of Acts. तो आप सोच के देखिए कि ये 4 सुसमाचार है हमारे पास, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और उसके बाद अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक नहीं है और फिर सीधा यूहन्ना के बाद में अगर रोमियो की पुस्तक है। Yeah, that is the question. Saurabh is very nicely translating. He's really putting good. So now, after John's gospel, suppose if you find Romans, the book of Romans and epistles to Romans, the question we will get is, how did the gospel go to Rome? That is the biggest question that we will find, and that is the biggest question which is difficult to answer that question. तो जो मूलभूत विषय यहाँ पे सोचने की है वो ये है कि चारों सुसमाचार के बाद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के बाद में अगर हम देखते हैं कि सुसमाचार का प्रचार जो है वो रोम में होता है या रोमियो की पुस्तक में हम देखते हैं होता है, तो जो सवाल उत्पन्न होगा वो ये है कि सुसमाचार के बाद आखिरकार रोम में सुसमाचार कैसे पहुंचा। Yes. So now this book of Acts will answer our question, and the book of Acts will clarify our questions and doubts, because the gospel went to Rome through the book of Acts. तो ये जो सवाल है कि रोम के प्रांत में सुसमाचार कैसे पहुंचा, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरितों का काम हमें इस बात का उत्तर देगा कि किस प्रकार से सुसमाचार रोम नामक प्रांत में पहुंचा। Yes. Now the book of Acts will give us the details how the gospel of the Lord Jesus Christ has traveled to the Rome and to the rest of the world. और जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है वो हमें इस बात को दिखाएगा और समझाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो किस प्रकार से प्रेरितों के काम की पुस्तक से होकर रोम जैसे प्रांत और संसार के अन्य अन्य छोर में सुसमाचार पहुंचा। And it's very interesting, in the flyer that Vijay has prepared, that banner or flexi or whatever, he titled Journey Through the Book of Acts. I really liked the title, Journey Through the Book of Acts. और जो विज्ञापन भाई विजय चंद्र जी ने बनाया है, जो उन्होंने व्हाट्सएप में पोस्ट किया था, उसमें लिखा था कि प्रेरितों के काम के पुस्तक की यात्रा, ये जो शीर्षक उन्होंने दिया था ये मुझे बहुत पसंद आया। Yeah, that's the yatra, that's the journey that we are traveling, and now through the book of Acts we will study how the gospel has journeyed, how the gospel has traveled through all these places and reached Rome.
तो ठीक उसी यात्रा के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो हम यात्रा ही करने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि सुसमाचार किस प्रकार से यात्रा करते हुए रोम और संसार के अन्य अन्य भागों में पहुंचा। Yes. So that is where we will understand that as an introduction, as we are still doing the introduction of Book of Acts. So the scholars have seen one scholar by name Warren Weisby. You can get this commented. This is a good book. Some of it is, but it's in English. But he brought this division. This is how he has divided. तो जब हम लोग इस प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और कुछ वैज्ञानिक, धर्म वैज्ञानिक और स्कॉलर्स को जब हम उनके विचारों को भी लेंगे, एक पुस्तक जो पाल साहब ने दिखाया, उस पुस्तक को भी हम अध्ययन करेंगे, तो उसके माध्यम से हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक का विभाजन प्राप्त होगा कि कैसे हम इस पुस्तक को विभाजित करके अलग अलग खंड में अध्ययन कर सकते हैं। Yeah, this is how the book is divided. Chapters 1 to 12, first 12 chapters from Jerusalem to Antioch, and from 13 to 28 from Antioch to Rome. First part is how gospel traveled from Jerusalem to Antioch, and from 13th chapter how gospel traveled from Antioch to Rome. That is the division of the book of Acts. तो जो पुस्तक पास्टर साहब ने दिखाया, उस पुस्तक में प्रेरितों के काम के पुस्तक को दो खंड में भाग किया गया है। पहले अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक जो विषय है वो है सुसमाचार की यात्रा यरूशलेम से अंताकिया तक, और उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है 13 अध्याय से 28 अध्याय के बीच में। उसका शीर्षक है अंताकिया से लेकर रोम तक किस प्रकार से सुसमाचार पहुंचा। So now it is very easy to understand or to have the book of Rome after the book of Acts. तो अब ये बहुत आसान होगा कि रोमियो की पुस्तक के पहले रोमियो तक या रोम तक सुसमाचार कैसे पहुंचा। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ लेंगे तो हमें इस बात को स्पष्ट हो जाएगा। Yes, thank you. Now let us consider a few other things as we are still at the introduction. Who wrote the book? Who is the author of this book of Acts? तो कुछ और मूलभूत जानकारियों को हम लोग यहाँ पे एकत्रित करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। जो सबसे पहला या जो अगला विषय है वो ये है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक को किसने लिखा। Yeah, I will read the first verse of first chapter of the book. और मैं आपके सामने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ूंगा। In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. इसमें इस प्रकार से लिखा है प्रेरितों के काम 1 के 1 में, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। Yeah, and I will also read another reference for you, that is from Luke's Gospel, chapter 1 and verse 1. और मैं एक और आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। I'll read the first 4 verses actually. In as much as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us, it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainly concerning the things you have been taught. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले 4 वचन। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। In these two references that we have just read from Luke's Gospel and the book of Acts, there is one person who is addressed here. That person is Theophilus. प्रेरितों के काम में जो आयत हमने पढ़ा और लूका रचित सुसमाचार में हमने आयत, दोनों आयतों में हम एक चीज समान देखते हैं, वो यहाँ पे एक व्यक्ति को
इंगित किया गया है और वो व्यक्ति है थियोफिलस। Theophilus, that's a Greek name. We can divide that into two words. That is a combination of two words, theos and philos. Theos means God, phileo means love. Theophilus means lover of God or friend of God. तो ये जो थियोफिलिस है ये एक यूनानी शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, थियोस और फिलिस। जो थियोस शब्द है उसका मतलब है परमेश्वर और फिलिस जो शब्द है उसका मतलब है प्रेम। तो जब दोनों शब्द को हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है परमेश्वर का प्रेम करने वाला या परमेश्वर का मित्र। तो थियोफिलिस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर का प्रेम करने वाला या परमेश्वर का मित्र। So this Theophilus could be, according to some scholars and the Bible teachers, they tell us he could be a Roman officer. Is somebody who is in high position, he is in high rank, somebody who is in a high position. It could be a Roman officer. तो बाइबल के जो ज्ञाता हैं या जो बाइबल के वैज्ञानिक हैं वो इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि ये जो थियोफिलुस व्यक्ति है ये रोमी शासक का कोई उच्च पदाधिकारी रहा होगा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस समय का रहा होगा। Yeah. So though he is a Roman officer, Roman means that we also need to bear in mind that he's not a Jew. He's not a. I mean, he doesn't. He like we can say he's a non-Christian. He didn't. He comes. He doesn't come from Christian background. He's a non-Jew. He's Roman. Almost we can say Gentile, Anya Jati. तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम इस नाम को सुन रहे हैं तो ये नाम यहूदी नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि थियोफिलुस यहूदी नहीं है, ये अन्य जातियों में से है, ये यूनानी है और एक यूनानी को यहाँ पे लूका जो है वो इन बातों को लिख रहा है। So probably that this man Theophilus, who could be a Roman officer, a very highly intellectual person, or somebody who is in high position in the government, probably wanted to know more about the Lord Jesus Christ. He had some desire to know about God. तो ये जो व्यक्ति है चाहे ये रोमी शासक हो या कोई उच्च पदाधिकारी हो, ये व्यक्ति जो कोई भी है, हम देखते हैं इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जानने की एक इच्छा है। So that's what his name tells us, Theophilus, lover of God, friend of God. So he wanted to have some more information, more accurate information. So these two books are written addressing that particular person. तो ये व्यक्ति के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर को प्रेम करने वाला या परमेश्वर का मित्र है। और हम देखते हैं कि जब ये दोनों पुस्तकें लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और प्रेरितों के काम की पुस्तक जब इसी व्यक्ति को लिखा जा रहा है तो इससे ये मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक जानने की एक विशेष रुचि है। And then about the author who has written, we very clearly know that from the Luke's gospel, we can understand that it was Luke who has written. Because of the same addressing, we also can understand even the book of Acts also is written by Luke. तो जब लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार लूक ने ही लिखा है और उसने उस पुस्तक को थियोफिलस को लिखा है और प्रेरितों की काम की जो पुस्तक है वो भी उसी व्यक्ति को इंगित करके, इसका मतलब यह है कि थियोफिलस को इंगित करके लिखी गई है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक भी लूका द्वारा ही लिखा गया है। Yeah. About Luke, when we study the gospel, we can understand certain things. That Luke, basically, he is a physician, he is a doctor. और जब लूक के विषय में लूक की जीवनी को हम पढ़ते हैं और सुसमाचार में से जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लूक जो है वो एक वैद्य था, चिकित्सक था। If you want to read, some of you, suppose if you are not sure about it, let us turn to Colossians 4th chapter, verse 14. Paul's letter to Colossians, chapter 4, verse 14. तो अगर आप इस चीज को बाइबल से भी और अधिक ध्यान से जानना चाहते हैं, स्पष्ट से जानना चाहते हैं, तो आप निकाल लीजिए कुलुसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 14वें वचन को, कुलुसियों 4:14। Luke, the beloved physician, greets you as does Demas. इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। Yes. So basing on this verse, which is written by Paul, we can understand that Luke was a doctor. He was a physician, medical doctor. तो पौलुस के इन वचनों के आधार पे हम इस बात को समझ सकते हैं कि लूक जो है वो
एक वैद्य रहा है और पेशे से चिकित्सक रहा है। And another important thing about Luke is we also know that he is also a historian. He writes history. और लूक के विषय में हम लोग एक और बात पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं, वो ये है कि लूक जो है वो इतिहास लिखने वाला है और इतिहास का एक अच्छा जानकार व्यक्ति है। Yeah. So these are the two important things that we need to understand, that he was a doctor by profession, medical doctor, physician, and he was also a historian. तो यहाँ पे लूक के विषय में हमें दो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। पहला चीज ये है कि लूक एक वैद्य था, चिकित्सक था, और दूसरा ये कि लूक एक इतिहासकार या इतिहास का लिखने वाला व्यक्ति था। And another thing, another interesting that we can notice about Luke is he's most probably he was a Gentile. He was also not a Jew, non-Jewish background. He was not a Jew. और लूक के विषय में एक और रुचिकर बात हम ये पता लगा सकते हैं कि लूक जो है वो यहूदी नहीं था, वो एक गैर यहूदी व्यक्ति था। Like for example, Matthew, whose other name also was Levite, Levi, and Mark, John, they all come from Jewish background. They are from Jews, Jewish background. But Luke is the only guy comes from the Gentile background, non-Jewish background among the gospel writers or among the writers of the New Testament. तो हम देखते हैं कि जो अन्य सुसमाचार के लेखक हुए, उदाहरण के तौर पे मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, इन नामों से और इनकी जब पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग यहूदी प्रांत से थे, ये लोग यहूदी व्यक्ति थे। लेकिन जब हम लोग लूक के विषय में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि लूक गैर यहूदी था। तो चार जो सुसमाचार लेखक हुए उसमें से लूक एकमात्र ऐसा लेखक है जो कि गैर यहूदी है। It is interesting for all of us to know that God can use anybody. God doesn't look at his background when God wants to use some person. यहाँ पे विशेष बात ये है और सीखने वाली बात ये है कि परमेश्वर जो है वो किसी को भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति का पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं है। For example, those of us who are in this group, in this Bible study, I know that most of you do not come from Christian background. Maybe your parents were not Christians, your grandparents were not Christians. You yourself, as a first generation Christian, you only became a Christian and you have other background, not Christian background, probably. उदाहरण के तौर पे हमारे इस ग्रुप में जितने लोग अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो मसीही पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। हो सकता है कि आपके माता-पिता ने प्रभु को ग्रहण किया हो या आपके परदादाओं ने प्रभु को ग्रहण किया हो, या ये भी हो सकता है कि आपने ही, आपके परिवार ने ही प्रभु को ग्रहण किया हो और आपकी पृष्ठभूमि या आप एक मसीही पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। Yes. See, for God, nothing is a barrier, nothing is a burden, nothing can stop God from using anybody. Luke, being a Gentile person from a non-Jewish background, he contributed two important books in the Bible. One is Luke's Gospel, another one is Acts of Apostles. तो परमेश्वर के लिए किसी की भी, किसी व्यक्ति का पृष्ठभूमि या उसकी पहचान अपने कार्य को करने के लिए बाधा नहीं बन सकती है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं लूक जो कि यहूदी प्रांत से नहीं था, वो एक गैर यहूदी व्यक्ति था, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने काम को किया और लूक ने बड़े ही महत्वपूर्ण योगदान को दिया। उन्होंने सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और प्रेरितों के काम की पुस्तक को लिखा। I want to encourage all of us, brothers and sisters who are in this group. God can use you also. God can use you. Through you, God can make you to contribute to a greater extent to the building of the kingdom of God. You can become a very useful instrument in the hands of God. और इस बात के द्वारा मैं इस ग्रुप में जितने लोग हैं आपको प्रोत्साहित करता हूं और आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है और परमेश्वर निश्चय ही आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। You may not be an educated person, you may not have a Christian background, you may not have many degrees, BA, BCom and all that, but still God can use you. हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे ना हो सकता है कि आपके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां ना हो सकता है कि आप मसीही पृष्ठभूमि से ना हो, इसके बावजूद भी परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। That's what we will see in the book of Acts as we study through these 28 chapters of book of Acts. We will come to know how God has used many people.
और ठीक इसी बात को हम लोग प्रेरितों के काम के इन 28 अध्यायों में पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अलग-अलग लोगों को अलग-अलग प्रांतों में अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। Yeah, the book of Acts basically is about what God has done through different people and how God has used his church to fulfill greater things for his और जो people. प्रेरितों की काम की पुस्तक है, वो मुख्य तौर पे इसी बात को बताता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से भिन्न-भिन्न लोगों के द्वारा क्या काम किए और फिर परमेश्वर किस प्रकार से अपनी कलीसिया के द्वारा अपने राज्य की बढ़ोतरी को कर रहा है। Yeah. And then when it comes to book of Acts of Apostle, as I said, there are two divisions. First 12 chapters, ministry around Jerusalem, and from 13 to 28, Antioch-based ministry. तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है वो 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 12 अध्याय यरूशलेम और उससे जुड़ी हुई सेवकाइयों के विषय में बताता है। 13 से लेकर 28 जो अध्याय है वहां पे अंताकिया और उसके आसपास की सेवकाइयों के विषय में बताया गया है। In the first 12 chapters, the main person, the main leader of the first 12 chapters of book of Acts was Peter. Peter. और 1 से लेकर 12 अध्याय के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो मुख्य भूमिका जिसने अदा की है वो है पतरस। And from 13 to 28, the main person, the main hero is Paul. और 13 से लेकर 28 अध्याय में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुख्य भूमिका अदा करने वाले हैं पौलुस। Paul, yes. And the first section, I'll give a little more details. There are uh, there are some important sermons that are recorded in this book. I will just take you through those sermons. और पहले भाग में मैं आपको और गहराई में लेकर जाना चाहता हूं और विवरण को देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे पहले भाग में मतलब 1 से 12 अध्याय में कुछ मुख्य संदेश बताए गए हैं, कुछ मुख्य प्रचार हुए हैं और मैं उन प्रचारों को आपके सामने रखना चाहता हूं। Probably I'll send these notes to Vijay or Saurabh. They can translate it into Hindi and they can send you later. और जो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन बातों को भाई विजय को या मुझे भेजेंगे और फिर हम इसे अनुवाद करके हिंदी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Yeah, first sermon that is recorded is Peter's sermon to Jewish converts in second chapter 14 to 41. Now you can just listen, you don't need to write down. Later anyway I'll send you notes. तो पहला प्रचार जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में मिलता है वो है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसके 14 से लेकर 41 वचन में, जहां पे पतरस यहूदियों को जिन्होंने अपने मन को फिराया उनको प्रचार करता है। And from in third chapter 12 to 26, we have Peter's message to Jewish people. He was speaking to Jews in third chapter. और फिर तीसरा अध्याय में हम देखते हैं 12 से लेकर 20 में पौलुस एक और प्रचार को करता है और इस प्रचार को वो यहूदियों के बीच में करता है। In seventh chapter from verse 1 to 53, we have Stephen's message to Jewish leaders. Stephen was speaking. Stephen gave a beautiful message. और फिर हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 1 से लेकर 53 आयत में देखते हैं कि स्तिफनुस ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रचार को किया और उसने इस प्रचार को यहूदी अगुओं के बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। And in the 10th chapter from verses 23 to 43, we have Peter's message to Gentiles. Basically, Cornelius was here the person. Peter gave a message to Gentile people. और फिर हम 10वें अध्याय में 22 से लेकर 49 आयत में हम देखते हैं कि एक बार फिर से पतरस का प्रचार वहां पे है और इस बार पतरस जो है वो अपने प्रचार को कुरनेलियुस एवं अन्य जातियों के बीच में करता है। And then comes here Paul, and we have Paul's 4 messages in the rest of the section. और उसके बाद हम देखते हैं पौलुस की सेवकाई का उल्लेख किया गया है और 13 से लेकर 28 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस के 4 प्रमुख प्रचार वहां पे पाए जाते हैं। 13th chapter from verse 14 to 49, we have Paul's message to Jews at Antioch.
और हम देखते हैं 13 अध्याय उसके 14 से लेकर 49 आयत में पौलुस अपने प्रचार को अंताकिया में करता है, जो कि वो यहूदियों के बीच में करता है। In 14th chapter, 14 to 18, Paul's message to pagans, Gentiles at Lystra, in a place called Lystra, he was addressing people there. और फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय के 14 से लेकर 18 आयत में हम देखते हैं पौलुस लुस्त्रा नामक स्थान में अन्य जातियों के बीच में प्रचार करता है। And in the 17th chapter, 16 to 31, we have Paul's message addressing Gentiles over there in a place called Athens. Paul's message at Athens. फिर हम देखते हैं 16 अध्याय उसके 16 से लेकर 19 वचन के बीच में, 14 से लेकर 19 वचन में हम देखते हैं पौलुस अथेने में अपने प्रचार को करता है, और उस अथेने में जब वो प्रचार करता है तो वो एक बार फिर से अन्य जातियों के बीच में प्रचार करता है। And in chapter 20, we have Paul's message that he gave at Ephesus. और Paul फिर Christian leaders in Ephesus. और फिर हम 20वें अध्याय में देखते हैं पौलुस एक बार फिर से प्रचार करता है, और इस बार वो एफेसुस नामक नगर में है और वहां पर वो मसीह अगुओं के बीच में खड़े होकर प्रचार करता है। Yes. In the first part of book of Acts, the message was going to Israelites in the first 12 chapters. तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो पहला भाग है 1 से लेकर 12 आयत में, जो सुसमाचार है, जो संदेश है, वो इस्राएलियों को दिया जा रहा है। And from 13th chapter onwards, ministry was focused, basically gospel was preached to Gentiles. और 13 अध्याय से अगर हम आगे देखते हैं दूसरे भाग में, तो जो सुसमाचार प्रचार है उसका केंद्र जो है वो अन्य जाति हैं या गैर यहूदी लोग हैं। Now we will have the detailed outline of the whole 28 chapters, 1 to 7, first chapter to 7th chapter, Peter and Jews. That was the ministry. और एक बार फिर से मैं आपको एक रूपरेखा देना चाहता हूं, आप इसे लिख सकते हैं। पहला अध्याय से लेकर 7वें अध्याय में पतरस और यहूदी, ये एक शीर्षक है, And then पतरस एवं यहूदी। in 8th chapter we have Peter's ministry to Samaritans. और 8वें अध्याय में हम ये 8वें अध्याय को हम ये शीर्षक दे सकते हैं, पतरस की सामरियों के लिए सेवा। Yeah, let's read few verses from 8th chapter. I'll read it for you. How Samaritans were addressed. For example, I'm reading 8th chapter, 4th verse onwards, 4 and 5. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ, Samaria. और 8वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है, और 8वें अध्याय के 4थे और 5वें वचन में हम देखते हैं सामरिया में प्रचार हो रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 8 का 4 और 5 में, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। Verse 9. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. Samaria is again used here. और 9वें वचन में भी हम देखते हैं सामरिया शब्द का इस्तेमाल होता है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले उस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। And verse 14 again I'm reading. Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, Samaria has received the gospel. 14वें वचन में एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं मैं। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं सामरिया के विषय में बताया गया है। Again verse 25. 25 वचन, preaching the gospel to many villages of Samaritans. 25 आयत में लिखा है, अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। So here we understand that in chapter 8 the ministry was concentrating on Samaria and Samaritan villages who are basically Gentiles.
तो 8वें अध्याय से हम लोग ये चीज को समझ पा रहे हैं कि जो सेवा है, जो सुसमाचार की सेवा है, वो सामरिया और सामरिया के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, उन गांव में केंद्रित है। And then in chapter 9, we have the great story, the exciting, dramatic story of the conversion of Saul. और फिर 9वें अध्याय में एक ऐतिहासिक घटना है, एक महान घटना है, और वो घटना है साउल का हृदय परिवर्तन या पौलुस का हृदय परिवर्तन। Yes, and then in verse chapters 10 and 11, we have Peter's ministry to Gentiles. और फिर 10वें और 11वें अध्याय में हम देखते हैं पतरस अन्य जातियों के बीच में अपनी सेवा को करता है। And in chapter 12, we have Peter's arrest. Peter was arrested. 12वें अध्याय में हम देखते हैं पतरस को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। Yes, and then from 13 onwards, 13th chapter onwards, we have Paul's ministry. Paul's ministry begins here. और फिर जब 13 अध्याय आता है और 13 अध्याय से आगे हम देखते हैं पौलुस की सेवा शुरू हो जाती है। And that was 13 and 14 chapters. That was Paul's first missionary journey. In chapter 13, we read, I will read it for you again from first three verses, chapter 13, 1 to 3. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a member of the court of Herod, the Tetrarch, the Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. हम लोग प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में 1 से लेकर 3 को पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। Yeah, what we have read here in chapter 13, first three verses, was a very historical event where the church was given a mission mandate. The Holy Spirit of God was giving this mission mandate to the elders of the church to set apart few people, at least two people, Paul and Barnabas, for the ministry that God has set for him. तो 13 अध्याय के पहले 3 वचन में हम लोग देखते हैं एक बहुत ऐतिहासिक बात यहाँ से हमें सीखने को मिलती है। सेवा के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक आज्ञा वहां पे दी जाती है, और वो आज्ञा ये है कि कलीसिया अपने लिए अपने आप में से कुछ लोगों को, 2 लोगों को यहाँ पे बताया गया है, बरनबास और साउल को कलीसिया की सेवकाई के लिए, सुसमाचार की सेवकाई के लिए अलग किया जाए। Brothers and sisters, this is definitely a unique context and unique event that has taken place in the church, where afterwards the history has changed, the shape of the church has changed, and whole thing brought a new thing in the history of the church. तो भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हुआ, ये एक बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही अलौकिक एक घटना है, जहाँ पे हम देखते हैं जिसके बाद से कलीसिया का जो आकार है, कलीसिया का जो आकृति है, वो पूरी तौर से बदल गया, और जो मिशन, जो सेवा का कार्य है, जो सुसमाचार का कार्य है, उसको करने का जो तरीका है, वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगा। Till this point, ministry was concerned around Jerusalem and around people of Israel, nation of Israel. But from this point onwards, ministry started going to different people groups, different nations, small places, towns, villages around the Gentile region from Antioch onwards. और इसके पहले तक हम देखते हैं कि जो सेवा है, सुसमाचार की जो सेवकाई है, वो यहूदियों के लिए और यरूशलेम के प्रांत के लिए और कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित था। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेवा जो है वो तितर-बितर होकर अलग-अलग प्रांतों में, गैर यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में,
अन्य अन्य प्रांतों में सुसमाचार फैलता चला गया। So we praise God, even in our own country, in our own places. God is doing great things, new things. In this new year, also 2021, may the Lord do new things, raise up new people for His mission work, and may the church send people to mission work, and greater things may happen. Let us vision, let us have that vision, let us dream about it, let's pray, and let us really commit ourselves for the new great work of the Spirit of God. इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, विशेषकर हमारे इस युग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम वर्ष 2021 में आ गए हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का जो सुसमाचार प्रचार का कार्य है, वो निरंतर कलीसियाओं के द्वारा होता चला जाए। मिशन की जो सेवा है, मिशन का जो कार्य है, परमेश्वर का जो मिशन है, उसे कलीसिया के द्वारा हमें पूरा करना है। कलीसिया को इस बात का समर्पण लेना है कि हम लोगों को नियुक्त करें, चयनित करें और उन्हें परमेश्वर के दर्शन को बताएं और परमेश्वर के सेवकाई को, सुसमाचार के कार्य को उन लोगों के द्वारा हम अन्य अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने का कोशिश करें। इसके लिए परमेश्वर के दर्शन का होना और उस मिशन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। As we are really journeying through the book of Acts, may the Spirit of God may inspire some of us to take up such mission challenges, and may new churches may be established in new places of our own nation. Praise God. जैसे हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं और जब हम में से कई लोग इस प्रेरितों के काम के अध्ययन में आगे बढ़ने वाले हैं, हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम में से कई लोग अपने आप में ये समर्पण लें, इस संकल्प को लें कि इस वर्ष हम अपनी सेवकाई के द्वारा नई कलीसियाओं का निर्माण करेंगे, नए-नए क्षेत्रों में जाकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। Yes. So in 13th chapter and 14th chapter, we have the details of Paul's first missionary journey. When तो Paul said, yeah, please. 13 और 14वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा यहाँ पे पाया जाता है 13 और 14 अध्याय में। Yeah, when the Spirit of God gave them the instructions, the church was good. You know, church has obeyed the instructions of the Spirit of God. They set apart these two people, Paul and Barnabas, and they both went out for ministry. In 13th chapter and 14th chapter, we have the record of the account of the ministry of Paul and Barnabas, which we call first missionary journey. तो 13 अध्याय में जैसे ही पवित्र आत्मा ने कलीसिया को आज्ञा दिया, कलीसिया ने उस आज्ञा को स्वीकारा, उस आज्ञाकारिता को पूरा किया और उन्होंने बरनबास और साउल को अलग किया, उन्हें विदा किया। और हम देखते हैं 13 और 14 अध्याय में कि उन्होंने अपने प्रथम सुसमाचार प्रचार यात्रा में किन किन कार्यों को किया। तो ये विवरण जो है हमें 13 और 14 अध्याय में मिलता है। Yeah. And then in verse 50, chapter 50, we have an account of the Jerusalem Council. There was an important meeting that had to be held in Jerusalem to discuss about a serious matter, some issue over there. और 15वें अध्याय में हम देखते हैं यरूशलेम में एक महत्वपूर्ण सभा होती है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय उजागर हुआ, एक मुद्दा उजागर हुआ जिसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। तो उस चर्चा के लिए 15वें अध्याय में हम देखते हैं एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई जो कि यरूशलेम में हुआ। Yeah, the issue here was in chapter 15, there was a problem in the early church. There were people from Jewish background and there are people from non-Jewish background, Gentile background. तो जो मुद्दा था, जो परेशानी का विषय था, ये जो समस्या थी वो ये थी कि जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी उसमें 2 प्रकार के लोग होते थे। पहले प्रकार के लोग जो यहूदी होते थे और दूसरे प्रकार के लोग जो गैर यहूदी थे, अन्य So, जाति थे। yeah, the issue was there. Jewish people had a very holy practice tradition by name circumcision, which was given in the Old Testament to the people of Israel, Abrahamic and Moses and all that, they followed it. तो जो समस्या थी वो ये थी कि यहूदी लोग बहुत समय से, है ना, मूसा के समय से, अब्राहम के समय से परमेश्वर ने जो एक पवित्र वाचा ठहराई थी जिसको कि हम खतना का वाचा बोलते हैं। यहूदी लोग इस खतना के वाचे को अपने जीवन में लागू करते थे और मानते थे और उसको बहुत ही विशेष स्थान अपने जीवन में देते थे। So circumcision was very important and very covenantal for every Jew. तो जो खतना
है वो यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये परमेश्वर के उस वाचा का चिन्ह था। Now, the Gentiles never practiced circumcision. They never had any experience or undergoing through this practice of circumcision. Gentiles never had this. तो जो दूसरे प्रकार के लोग कलीसिया में थे, गैर यहूदी या अन्य जाति लोग, उन्होंने कभी खतना नहीं कराया था और उन्हें खतना के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। But very unfortunately, what happened here, some of the believers, Jewish Christians, started preaching to Gentiles. They said, you Gentile people, if you have to become Christians, you first should become Jew by undergoing circumcision, and then you must become Christian. Two-step verification, two-step salvation. तो यहाँ पे दुर्भाग्य की बात ये थी कि कुछ यहूदी मसीह जो हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उन्होंने गैर यहूदियों को या अन्य जातियों को जो नए कलीसिया में आए थे, उनको ये शिक्षा देने लगी कि तुम लोग जो यहूदी नहीं हो और खतना को नहीं मानते हो, अगर तुम मसीह होना चाहते हो तो तुम्हें दो चीज करना पड़ेगा। पहला ये है कि तुम्हें खतना करा के यहूदी बनना पड़ेगा और उसके बाद फिर तुम जाकर मसीह को स्वीकार कर पाओगे। तो दो So प्रकार की विधियों को ये गैर यहूदी या अन्य जातियों के लिए ठहरा दिया गया। yeah, this was quite unbiblical. Bible never was saying that Gentiles should become first Jew by undergoing circumcision and then Christian. But it was quite unbiblical. Bible never taught that. But some Jewish Christians were insisting on Gentiles that they must have this circumcision. That was a big तो problem. तो ये जो प्रक्रिया थी, ये बाइबल के आधार पे नहीं थी। बाइबल इस बात की शिक्षा नहीं देती है कि एक गैर यहूदी को या एक अन्य जाति को मसीह होने के लिए पहले खतना कराना होगा और उसके बाद फिर वो मसीह बन सकता है। ये शिक्षा, ये झूठी शिक्षा जो है या ये गलत शिक्षा जो है, ये यहूदियों द्वारा, मसीह यहूदियों द्वारा उन गैर यहूदियों को दिया जा रहा था और उनके ऊपर में दबाव बनाया जा रहा था। So this is where, even in the Galatians, Paul's letter to Galatians, even in Philippians, Paul was dealing about this issue, about circumcision of Gentiles. और यही जो मुद्दा है, हम देखते हैं पौलुस भी इस मुद्दे का सामना करता है, विशेषकर जब वो गलातियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री को लिखता है, तो गैर यहूदी या अन्य जातियों के खतना का जो विषय है, उसकी चर्चा पौलुस भी करता है। So in chapter 15 of Book of Acts, there was a big council held. All big leaders like Paul, Peter, and other apostles, and all the church leaders has to sit down and they had to come to a conclusion. What shall we do about it? What is God wanting us to do? So there was a big committee meeting or council meeting. तो 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि यरूशलेम में जो सभा हुई, जो मीटिंग हुई, वो इसी विषय को लेकर हुई और इस मीटिंग में, इस सभा में हम देखते हैं बड़े-बड़े प्रेरित उपस्थित थे, जैसे पौलुस हुआ, पतरस हुआ और भी जो प्रेरित ठहराए गए थे और कलीसिया के जो बड़े-बड़े अगुवे थे, वो सब बैठे और उन्होंने चर्चा किया कि ये जो खतना का विषय है, इसका हम क्या समाधान निकालें। And then we have 16 to 18 chapters, we have Paul's second missionary journey. और फिर उसके पश्चात हम देखते हैं 16 अध्याय से लेकर आगे में पौलुस की जो दूसरी मिशनरी यात्रा या दूसरी प्रचार यात्रा प्रारंभ होती है। And from 18th chapter to 21st chapter, we have Paul's third missionary journey. और 18 से लेकर 21 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा या सुसमाचार प्रचार यात्रा पाया जाता है। And finally, from 21st chapter to 28th chapter, we have Paul's arrest. Paul was arrested and he was taken to Rome. और फिर हम देखते हैं 21 अध्याय से लेकर 28वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे किस प्रकार रोम भेज दिया जाता है। So finally, Paul had to go to Rome. Paul ended up in Rome, and Paul was imprisoned there, and later he was killed. He died in Rome. और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस को अंत में रोम भेजा जाता है और उसका पौलुस का जो अंतिम सेवा कार्य है वो रोम प्रांत में रहा और रोम में उसे सजा होती है और रोम में ही पौलुस की मृत्यु होती है। So likewise, we will go through the book of Acts. I will also give few more details about the book outline, few more details from the outline of the book of Acts.
और इस प्रकार से हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को और भी विवरण में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा और भी रूपरेखाओं को आपके सामने रखूँगा ताकि आप और अधिक अच्छे से इन बातों को समझ सकें। Yeah. In the first chapters, first three chapters, अब हम लोग पहले तीसरे अध्याय की बात करें। in the first chapter, we have about the ascension of Christ, Christ going into heaven, which we call ascension of Christ. पहले अध्याय में जो मुख्य विषय है वहाँ वो इस प्रकार से है, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। In हम second देखते हैं chapter, प्रभु यीशु मसीह का पहले अध्याय में स्वर्गारोहण होता है और वो बादलों में उठा लिए जाते हैं। yeah, in second chapter we have descension of Holy Spirit coming down. Second chapter of Book of Acts. फिर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पवित्र आत्मा किस प्रकार से नीचे उतरता है। हम देखते हैं पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरता है। And in third chapter we have the expansion of the church. और फिर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। And in the fourth chapter we have the first deliverance of the church. फिर चौथे अध्याय में हम देखते हैं कलीसिया में सबसे पहला छुटकारा जो हुआ वो हमें चौथे अध्याय में मिलता है। And then in the fifth chapter we have the first discipline, crucifixion, first discipline of Ananias and Sapphira. That is in the fifth chapter. और फिर हम देखते हैं पांचवें अध्याय में जो सबसे पहले अनुशासन की बात है, अनन्या और सफीरा के जीवन से हम देखते हैं सबसे पहला अनुशासन जो सिखाया गया वो पांचवें अध्याय में मिलता है। And in the sixth chapter we have the first deacons, the seven elders were chosen, seven deacons were chosen. That is in the sixth chapter, first deacons. और छठवें अध्याय में जो 7 अगुओं का जो सबसे सर्वप्रथम 7 अगुओं का चुनाव हुआ उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है छठवें अध्याय में। And in the seventh chapter we have the first death, first martyr, that is Stephen. Stephen died, Stephen was killed in the seventh chapter. That is the और first. सातवें अध्याय में हम देखते हैं जो प्रथम शहीद हुआ वो है स्तिफनुस। तो स्तिफनुस के शहीद होने की घटना जो है वो हम सातवें अध्याय में पाते हैं। Yeah, in the eighth chapter we have the eunuch, the Ethiopian, how he got saved. That is in the eighth chapter. Philip ran to the throne, and then he gave the gospel, and Ethiopian became a Christian in eighth chapter. और फिर हम देखते हैं आठवें अध्याय में किस प्रकार से इथोपिया में एक व्यक्ति जो है वो प्रभु को ग्रहण करता है और किस प्रकार से कूश देश में जाकर एक मनुष्य को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाता है और उसका जीवन बदलता है। In the ninth chapter, we have the conversion of Saul. Saul becoming Paul in ninth chapter. और नौवें अध्याय में हम देखते हैं साउल का या पौलुस का हृदय परिवर्तन होता है। And in the 10th chapter, we have the conversion of Cornelius in Italian, Cornelius in 10th chapter. और 10वें अध्याय में हम देखते हैं एक इतालियानी जिसका नाम कुर्नेलियुस है उसका जीवन परिवर्तन होता है। And in 11th chapter, we have about persecution because of Stephen. And in Stephen, the 11th chapter. और 11वें अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस के प्रचार के बाद जो अत्याचार हुआ, जो सताव आया, उसके विषय में हम 11 अध्याय में देखते हैं। In chapter 12, we read about persecution because of Peter. और 12वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस की सेवा के कारण से किस प्रकार से सताव उजागर हो गया। We also read about the arrest of Peter, how Peter was arrested and then later released. और 12वें अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि पौलुस की गिरफ्तारी हो जाती है। Yeah, and from 13th पतरस की गिरफ्तारी होती है 12वें अध्याय में। Yeah, 13th chapter onwards. 13 अध्याय के आगे As we mentioned, we have the missionary journeys of Paul to different places. 13 अध्याय से आगे हम देखते हैं कि पौलुस की जो मिशनरी यात्राएं हैं, सुसमाचार प्रचार की जो यात्राएं हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, उसको हम 13 अध्याय से आगे पाते हैं। So this is how we can divide the book of Acts. This is the basic outline of the book of Acts. तो इस प्रकार से हम अलग-अलग खंडों में प्रेरितों के काम की पुस्तक को विभाजित करके अध्ययन करने जा रहे हैं। Yes. When was it written?
the date of the book. अब अगला जो विषय है वो ये है कि ये प्रेरितों के काम की पुस्तक कब लिखी गई, इसकी तारीख क्या है या इसका समय कब का था? Basically, we can say about 61 to 62, the book could be written. और हम देखते हैं कि AD 61 या AD 62 में इस पुस्तक को लिखा गया था। Most probably that could be the death of Paul. Also, even before his death, even little few years before, date can be given. तो इसका जो समय है वो पौलुस के मृत्यु के समय या पौलुस के मृत्यु के थोड़ा सा पहले का जो समय है 61 या 62 शताब्दी का जो समय है वो समय को हम बोल सकते हैं कि ये पुस्तक उस समय लिखी गई थी। Somewhere from 54 AD. हो सकता है कि 54 AD में हो सकता है कि इसका लेखन किया गया हो। So this is the background of the book of Acts. तो ये जो प्रेरितों के काम की पुस्तक की पृष्ठभूमि है वो मैं आपके सामने रखा। So we have studied, we have got to know the background of the book, who has written, that Luke has written this book, and to whom it is written to Theophilus, who could be a Roman official, a Gentile, non-Jewish person. तो हमने अभी तक जिन बातों को सुना है वो इस प्रकार से है। हमने प्रेरितों के काम के पुस्तक के पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश की। किसने इस पुस्तक को लिखा? हमने आपको बताया कि लूका ने इस पुस्तक को लिखा। ये पुस्तक किसको लिखा गया? मैंने उस चीज को भी बताया कि ये पुस्तक थियोफिलुस को लिखा गया। थियोफिलुस एक गैर यहूदी व्यक्ति था, एक यूनानी व्यक्ति था और उस व्यक्ति को लूका ने इस प्रेरितों के काम की पुस्तक को लिखा। And we also have seen the content, what is there in these 28 chapters in nutshell, in an outline form we have considered. और संक्षिप्त में हमने ये भी देखने का कोशिश किया कि इन अध्यायों में 1 से लेकर 28 अध्यायों में किस प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं और इन अध्यायों में मुख्य विषय क्या-क्या है, मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का कोशिश किया। Yeah, the key words, the main theme verse is Acts 1:8, first chapter 8. तो प्रेरितों के काम के विषय में अगर बोला जाए कि इस पुस्तक की सबसे विशेष आयत कौन सी है, सबसे प्रमुख आयत कौन सी है, तो वो हमें मिलता है प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय, उसका 8वां वचन। If you are all there with your Bibles, can we all read Acts 1:8 together? Or you can read in your own language. You just take time, take 1 minute. You all open the book of Acts, first chapter, verse 8. तो मैं अब आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, होस्ट जो है वो सबको अनम्यूट कर दें और या आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें, सब अपने अपने माइक को ऑन कर लें। हम लोग प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन को एक साथ, चाहे आपके पास जिस भी भाषा में बाइबल हो, हम एक साथ उसको पढ़ेंगे। तो होस्ट से मेरा निवेदन है कि वो सबको अनम्यूट कर दे या आप सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपना अपना माइक ऑन कर लें और हम लोग प्रेरितों के काम उसका 8वें वचन को एक साथ पढ़ेंगे। Yeah, I am really happy. All mics are unmuted, and Saurabh is doing a great job of translation. I think by the time we complete the book of Acts, I will learn Hindi from him. थैंक यू ब्रदर। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने अपने माइक को ऑन कर लिया है और हमारे लिए अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से सीख पा रहे हैं, तो हम लोग इस वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। Yes, let's all read together in your own language, whichever language Bible you have, you feel free. Even I would like to read from Telugu, not English. तो हम लोग चाहे जिस भी भाषा में हम बाइबल पढ़ते हैं, हम साथ में पढ़ेंगे और मैं खुद भी तेलुगु में पढ़ूंगा, इसीलिए हम सब इसको एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन। Yeah, we all will read together, please. आइए हम पढ़ते हैं। Yeah, so you start. आइए हम परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा ओके और और ये यरूशलेम बहुत के सारे सारे यहूदा और यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक गवाह होंगे। गवाह होंगे।
Shall we read it once again? I really enjoyed it. I really found that you're all reading good. Let's read once again, just one more time. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने पढ़ा। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, हम एक बार फिर पढ़ेंगे 1 का 8 एक बार और। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ के यरूशलेम और सारे यहूदिया में छोर तक गवाह होंगे। मेरे गवाह छोर तक मेरे गवाह होगे। Thank you very much. God bless you. See, आप सबका बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं होस्ट से निवेदन करूंगा कि वो सबको म्यूट कर दें एक बार फिर से, ताकि हम बिना डिस्टरबेंस के आगे बढ़ सकते हैं, या आप सब अपने अपने माइक को एक बार फिर से म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। yeah, I see one brother, I think from Sikh background, Vinder Kaur. He looks like a Sikh. I'm glad to have you, Vinder Kaur. और मुझे हमारे भाई सुखविंदर कौर दिखे हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत ही आनंदित हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, सिख समुदाय से भी हमारे बीच में लोग हैं। Yeah, Pastor Saluja, Pastor information. Saluja. Yes, Kaur, you are saying something? Sorry, Pastor Jaspal Singh Saluja. I didn't understand. Saurabh, can you translate? Jaspal Singh Saluja. So Yeah. that brother's name is Jaspal Singh Saruja. I think he's a pastor at Raipur. Okay, great. I just want to inform all of you, Punjab is one state in India where there is a great revival. Church is growing very fast in Punjab. और मैं आप सबकी सूचना के लिए और जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहता हूं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे सेवकाई जो है वो विस्फोटक आधार पे हो रहा है और कलीसियाएं जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और पंजाब इस चीज के लिए सराहनीय है। There are very good, strong believers, strong Christians in Punjab. We praise God for that. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पंजाब राज्य में मसीह के बहुत ही मजबूत विश्वासी पाए जाते हैं। Yeah, now let's come back to our study. Luke, see, we said that both Luke's gospel and Acts is written by Luke. तो हम फिर से अपने अध्ययन में वापस आते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों पुस्तकों को लूका ने लिखा है। Yeah, now I will read the last few verses of Gospel of Luke in chapter 24. और अब मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय मतलब 24वें अध्याय के कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। I'm reading from 50 onwards, 50 to 53. Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven, and they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple blessing God. लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 50 से लेकर 53 में लिखा है, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। And now let us come to Acts, book of Acts, chapter 1, first few verses I will read again. और अब वापस आ जाएं हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसमें से मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." पहले प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके पहले 5 वचन। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद
बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। We need to understand that Luke, the author of these two books, he started his second book from where he stopped in the first book. तो हम एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखते हैं। लूका जो कि दोनों पुस्तक का लेखक है, उसने अपनी दूसरी पुस्तक प्रेरितों के काम की पुस्तक को वहीं से शुरू किया जहां से उसने अपने पहली पुस्तक लूका रचित सुसमाचार को खत्म किया था। So in the Luke's gospel, he said, the Lord Jesus ascended, then they were all asked to wait in the temple at Jerusalem. They were all there in the temple in Jerusalem, praying, blessing, worshiping God. That is और Luke. लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि लूक इस बात को लिखते हैं कि किस प्रकार से चेलों को आज्ञा दिया गया कि वो यरूशलेम में ही रहें, और हम इस बात को पाते भी हैं कि वो यरूशलेम में रहे और मंदिर में उपस्थित होते थे और वहां पर वो परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। Yeah. See, and then Acts starts from that point. They were still in the temple. They were in Jerusalem. They were waiting for the promise of the Holy Spirit, for the arrival of the Holy Spirit. And there is a good connection between Luke's gospel and Book of Acts. और फिर हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय में देखते हैं कि चेले जो हैं वो यरूशलेम में पाए जाते हैं, वो यरूशलेम में ही हैं, वो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा उन पर आए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक में बहुत अच्छा एक तालमेल है, एक संपर्क है। So we need to understand, they were at Jerusalem. They were in the temple, worshiping, praising, and waiting. Very truly following the instructions that were given by the Lord Jesus Christ. तो हमें यहाँ पे जो बात समझना है वो ये है कि चेले यरूशलेम में हैं, मंदिर में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आदेश दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्हें आदेश दिया गया था, उसका वो लोग हूबहू पालन कर रहे थे। If he wanted, the gospel writer could have straight written from Pentecost, from second chapter onwards, but he did not begin his book with Pentecost. He did not do that. तो अगर आप सोचें तो ये भी हो सकता था कि लूक अपनी इस पुस्तक को पिन्तेकुस्त के दिन से शुरू कर सकता था जहां पे पवित्र आत्मा उन चेलों के ऊपर पे उतरा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वहां से शुरुआत नहीं होती है। So this was a waiting period, waiting for the promises fulfillment, waiting for the Spirit of God, waiting on the Lord for the instructions to be fulfilled. तो हम यहाँ पे इस बात को सीखने को पाते हैं कि ये जो समय था वो इंतजार का समय था, परमेश्वर से प्राप्त करने का समय था, जो पवित्र आत्मा का वायदा किया गया था उसे प्राप्त करने का इंतजार का समय था, परमेश्वर की आत्मा से भर जाने के लिए इंतजार करने का समय था। So I want to emphasize on the fact that this period of waiting period is very important in the Christian ministry and in the Christian life. तो मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहता हूं, वो ये है कि मसीही जीवन में इंतजार करना, धीरज धरना एक महत्वपूर्ण पहलू को दिखाता है। So during that waiting period, just waiting on the Lord, the promises fulfillment, and waiting for the promise of the Spirit of God, spending time in the presence of God, worshiping Him, praying to God. और ये जो इंतजार का समय होता है, ये परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय होता है, उसके साथ समय बिताने का होता है, परमेश्वर की उस आत्मा से भर जाने का समय होता है। तो इंतजार करना जो है वो मसीही जीवन में एक आशीष भरा समय होता है जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है। Brothers and sisters, this is a very key spiritual exercise that we need to observe in our spiritual lives. Please observe this. तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो इंतजार करना है ना, प्रभु में इंतजार करना, परमेश्वर के समय का इंतजार करना,
जो विषय है ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस बात को अपने जीवन में जरूर जगह दें। We are going to close our session within 10 or 15 minutes. But before we close, I would like to leave all of us with this thought. और अब 10-15 मिनट के अंदर में हम लोग आज के इस सत्र को समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जब मैं समाप्त करूं, मैं इसी विषय पर जोर देकर समाप्त करना चाहता हूं। Don't unnecessarily rush into the things, but have this experience of waiting and spending in the presence of God to receive the blessing that is promised or to receive the promises fulfillment. अनावश्यक बातों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए होड़ न मचाएं, हड़बड़ाएं नहीं, लेकिन अपने जीवन में आप प्रभु में धीरज धरें, इंतजार करें और जब आप परमेश्वर में होकर इंतजार करेंगे तो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई आशीषों को प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। Yeah, the promise that was given here is in 1:8, which we have read, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. और यहाँ पे जो प्रतिज्ञा, जो वायदा उन लोगों को दिया गया था, 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Then the later part of this verse is, then you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. और इस वायदे का जो दूसरा भाग है वो इस प्रकार से लिखता है, और फिर यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। There are two aspects in this promise, and there are two aspects in this verse. तो ये जो वायदा है इसमें दो बातें बताई गई हैं। One is that we need to wait to receive the power of the Holy Spirit. पहला जो भाग है वो ये है कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए ठहरना है, रुकना है, इंतजार करना है। So the power is promised, the power of the Spirit of God is promised, and the presence of the Spirit of God is promised to us. You will receive power of the Spirit of God. तो यहाँ से इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि परमेश्वर की जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है और पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है, वो वायदे के तौर पे हमें किया गया है और हम निश्चय ही उसे प्राप्त करेंगे। The key word here, there are actually two key words in the first part. One key is power, and the other key is the Spirit of God. तो यहाँ पे जो पहला भाग है इस वायदे का, इस पहले भाग में दो महत्वपूर्ण बात है। पहला बात है सामर्थ और दूसरा जो भाग है वो है परमेश्वर की the one is power and the second one is the keywords. Spirit. पहला है परमेश्वर की सामर्थ और दूसरा है पवित्र आत्मा। Yes. See, I think that was what they were in need of, those Christians, those early Christians of that time, because they were very much afraid of the crucifixion because of the cross. Jesus died, and the Roman government and the Roman authorities were bent upon causing persecution, suffering, and troubling these early Christians at this तो time. ये जो शुरुआती पहली शताब्दी के जो मसीही हुए, इनको इन दो चीजों की बहुत ही आवश्यकता थी, पवित्र आत्मा और सामर्थ, क्योंकि हाल ही में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण को देखा और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा तो उनके अंदर में भय छा गया और फिर रोमी शासकों ने इन मसीही के अनुयायियों के ऊपर में हर प्रकार के दबाव को बनाना शुरू किया, जिसके कारण से ये लोग भयभीत हो गए। तो जब ये लोग भय में थे और व्याकुलता में थे तो उन्हें इन दो चीजों की आवश्यकता थी। So what they needed, because of their fear and all, what they needed was the power, authority. तो अपने इस भयमय स्थिति में जब वो लोग विचलित थे तो उन्हें किस बात की आवश्यकता थी? उन्हें सामर्थ की आवश्यकता थी, एक अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। And that's what they were promised. And it is said, you are going to be very powerful, you are going to be authoritative, you are going to be strong. That was the message needed at that point of time to that people. और यही वायदा प्रभु यीशु मसीह ने उनको किया था कि जब वो लोग भयभीत होंगे तब उन्हें सामर्थ्य दिया जाएगा, उन्हें अधिकार दिया जाएगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी जाएगी। I think as we are reading this word on the 5th January 2021, I believe even the church in India today, and you and I, all of us are in need of this promise. Amen. Amen.
आमीन। Amen. जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, जब हम लोग आज 5वें दिन में हैं 2021 वर्ष के, तो मैं ये जानता हूँ और मुझे पूर्ण आश्वासन है कि जो भारत की कलीसिया है, आज इन्हीं 2 चीज़ों की आवश्यकता इस कलीसिया को है। We know what is all going on in our country, India, the lot of changes in politics, and the church is being attacked. There are many plans to increase persecution, suffering to the church. और मैं जानता हूं और आप सब जानते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से राजनीति में बदलाव हो रहे हैं, किस प्रकार से कलीसियाओं पर आक्रमण हो रहे हैं, किस प्रकार से सताव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कलीसिया की जो स्थिति है वो सरल या सामान्य नहीं है। What we need today is this power, this authority, this strength, this support, and this confidence, and this boldness. That is what the church in India today need. और जब कलीसिया भय की स्थिति में है तो हमें किस बात की आवश्यकता है? जी हाँ, हमें ठीक इसी बात की आवश्यकता है कि कलीसिया में सामर्थ हो, अधिकार हो, और कलीसिया में अधिकार के साथ में सेवा करने की सामर्थ होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों की कलीसिया आज इन्हीं बातों की आवश्यकता आज भारत की कलीसियाओं को है। So when will we receive this power, strength, and boldness and confidence? When we receive the Holy Spirit. तो कब हम सामर्थ प्राप्त करेंगे, कब हमारे अंदर हियाव आएगा, कब हम दृढ़ता प्राप्त करेंगे? जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करेंगे, तब ये सारी चीजें हमारे अंदर आएंगी। It is the Spirit of God that is going to strengthen you and me. It is the Spirit of God that is going to strengthen the church in India. और ये पवित्र आत्मा ही है, परमेश्वर की आत्मा ही है जो आपको मजबूत करेगी, आपको दृढ़ करेगी और भारत की कलीसियाओं को मजबूती प्रदान करेगी। So let us be confident, let us be bold, brothers and sisters, that the Spirit of God is with us, and that Spirit of God is going to strengthen us, make us bold. और इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप में संपूर्ण विश्वास रखें, भरोसा रखें कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारे साथ है और परमेश्वर की आत्मा हमें और भी अधिक दृढ़ और मजबूत बनाने जा रही है। Now the question is, what for this power? What for this strength? Why we should become bold? Why we should become, what will we do with that strength and power? और अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये सामर्थ, ये दृढ़ता, ये हियाव, ये आत्मविश्वास आखिर किस चीज के लिए चाहिए? क्यों हमें इन बातों को प्राप्त करना है? The Bible tells us, you will be my witnesses in Jerusalem, all the Judea, Samaria, and to the ends of the earth. बाइबल इस बात का उत्तर इस प्रकार से देती है कि तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। And again, two parts here. The strength is used. Why we need strength, and what will we do with that strength that God has promised us? We will become effective witnesses. तो यहाँ पे 2 बातें हैं। सवाल पहला ये है कि हमें आखिरकार क्यों सामर्थ चाहिए? इसका उत्तर ये है कि हम सामर्थ इसीलिए प्राप्त करेंगे ताकि हम प्रभावशाली गवाह बन जाएं। It is not said here, when you receive the Holy Spirit, you will have more property or more income, more money, or more this and that, many buildings, many cars. No, that's not the promise. Please understand. और यहाँ पे आप इस बात को स्पष्ट समझिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम बहुत धनवान हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे मकान, बंगले, गाड़ियां हो जाएंगी। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। The power that is given, the power that is needed, the power that will be given to us will be useful, will be used in making us more effective in witnessing for the Lord, speaking तो for the Lord. जो सामर्थ हमें दिया जाएगा उसका सही इस्तेमाल या उसका प्रभाव तभी होगा जब हम परमेश्वर के गवाह होंगे। दूसरे शब्दों में ये सामर्थ हमें इसीलिए दिया जा रहा है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए बोलने वाले हो जाएं। So what Bharat needs today, what India needs today is more effective witnesses. आज अगर हमारे देश में ये पूछा जाए कि किस बात की आवश्यकता है तो उसका उत्तर ये है कि भारत को आज प्रभावशाली गवाहों की आवश्यकता है। For those who boldly live for God, be a witness for God, be a sakshi for God. और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दृढ़ता पूर्वक हियाव के साथ अपने विश्वास को थामे रहें और अपने विश्वास की गवाही देने वाले हों और अपने विश्वास रूपी जीवन को जीने वाले हों। Yes.
So may we be really encouraged as we are closing this session that we may be effective witnesses all through this year 2021. तो अब जब हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं, तो आज का जो मुख्य बात है वो हमारे लिए ये है कि इस वर्ष 2021 में हम प्रभावशाली गवाह बनने वाले हो जाएं। The second part of that thing, witnesses where? First in Jerusalem. Jerusalem is the place where they are. Judea next, the next surrounding circle, next to Jerusalem, second circle. Samaria is the third circle. Fourth, ends of the earth is outer circle. तो अब सवाल ये होता है कि हमें कहाँ पे गवाह बनना है। यहाँ पे 4 बातें बताई गई हैं। यरूशलेम, जिसका मतलब है कि जहाँ आप हैं वहां पे आपको गवाह होना है। यरूशलेम के बाद में बताया गया है यहूदिया, आप जहाँ हैं उस स्थान के इर्द गिर्द जो आपको लोग दिए गए हैं वहां पे आपको गवाह होना है। और उसके बाद फिर तीसरी बात सामरिया और पृथ्वी के छोर, मतलब आपके जो अगले दायरे हैं, तीसरे और चौथे जो दायरे हैं वहां तक आपको गवाह होना है। So may the Lord really bless us, strengthen us to be effective witnesses in the places where we are living, and next circle, next circle, next circle, and may the Lord really take the gospel to the ends of the earth. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें ये हियाव दे कि जिस स्थान पे हम हैं वहां पे हम गवाह बने। उसके इर्द गिर्द जो हमें लोग दिए गए हैं हम उनके लिए गवाह बने, और फिर हम देखें कि मेरा दायरा इसके बाद क्या है, और उन दायरों तक भी हम पहुंचकर गवाह बनने की कोशिश करें। और परमेश्वर हमें ये आशीष दे कि हम भी पृथ्वी के छोर तक अपनी गवाही को पहुंचाने वाले हो सकें। So may the Lord strengthen us, our churches, our families, our personal spiritual lives, and may the Lord really use us. परमेश्वर हमारी कलीसियाओं को, हमारे परिवारों को मजबूती प्रदान करे, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को मजबूत करे, ताकि इसके द्वारा हम सब आशीषित हो सकें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Or Saurabh, you can lead us in prayer. यस।